Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the Physics class 9th, chapter number 3, its numerical problems from 1 to 5. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. So, dear students, let's get started. The first numerical problem is a force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. What is its mass? अब हम इस गिवन जो स्टेटमेंट है इसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है. सो 20 न्यूटन एक फोर्स है, जबकि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमने एम की वैल्यू को जो है कैलकुलेट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर डाटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, जबकि ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को राइट करेंगे. वी नो डैट एफ इक्वल टू होता है एम ए. हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो m विल रिमेन हेयर, और a जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. अब हमने सिंपली वैल्यूज को जो है पुट डाउन करना है. f की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू 2 है. 2 1s are 2, 2 10s are 20, so we will get our answer, which is 10 kg. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. नाउ वी विल हैव द सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, which is the weight of a body is 147 न्यूटन. व्हाट इज इट्स mass? ये weight की वैल्यू गिवन है 147. हमने m जो है फाइंड आउट करना है, और इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि हमने g की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो यूज करनी है. So we will have our data like W is equal to 147 Newton, G is equal to 10 meter per second square, and we will have to find out the value of M. So we will use the formula. We know that W is equal to mg. m की वैल्यू फाइंड करनी है, g मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. अब हमने वैल्यूज को जो है पुट डाउन करना है. 147 डिवाइडेड बाय 10. सो वी विल हैव आवर आंसर. जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 14.7 kg. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है. आप इनके लास्ट के ऊपर रिजल्ट की वैल्यूज, मतलब रिजल्ट की हेडिंग देके लिख सकते हैं. द mass of a body is 14.7 kg. Third numerical problem is how much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling. हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर मास जो है वो 10 kg दिया गया हो. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे m जो है वो 10 kg है, g जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमने r की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. हमें पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, वी नो डैट नॉर्मल रिएक्शन R जो है वो W के इक्वल होता है, और W इक्वल होता है mg के. m की वैल्यू 10 और g की वैल्यू 10. We will have the answer of normal reaction force, which is 100 Newton, and it is our answer.
The fourth numerical problem is find the acceleration produced by a body of 100 Newton in a mass of 50 kg. हमने A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि F 100 न्यूटन गिवन है और मास जो है वो 50 kg है. Dear students, given data में से F is equal to 20 Newton and the mass is 50 kg, and we will have to calculate the value of acceleration. And from Newton's second law of motion, we know that F equal to होता है ma. We will have to find out the value of A will remain here and m will be get divided by F. Now by simply putting the values of F and m we will get 1. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे F की वैल्यू जो है वो 100 न्यूटन है, तो हम यहाँ पे 100 पुट करेंगे जबकि मास जो है वो 50 है. 5 ones are 5, 5 twos are 10, and we will get our answer, which is A is equal to 2 meter per second square. The fifth numerical problem is a body has a weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है और हमने यहाँ पे एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जबकि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो गिवन है. तो गिवन डाटा जो है W इज इक्वल टू 20 न्यूटन, A 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी और R जिसे हम वेट भी कहते हैं ये हमारे पास 20 न्यूटन एंड वी विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F. डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू mg. हमने यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है W/G. अब आप इसमें वैल्यूज को पुट कर दें. W की जगह पे आ जाएगा आपके पास 20 और G की जगह पे आ जाएगा 10. तो हमारे पास m की वैल्यू जो है वो 2 kg आ गई. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F किसके इक्वल होता है ma के. अब हम इसमें सिंपली वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 वी विल गेट 4 न्यूटन. अब हमने टोटल फोर्स रिक्वायर्ड जो है वो निकालनी है टू मूव द बॉडी अपवर्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि जो नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अपवर्ड होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस फोर्स प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेशन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव body upward is equal to normal reaction plus force producing acceleration. तो आप इसमें वैल्यूज को पुट डाउन कर दें. एक हमारे पास जो है मीन्स यहाँ पे एक हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाली फोर्स को ऐड अप करेंगे और एक हम ये वाली को. तो यहाँ पे आ जाएगा जो नॉर्मल रिएक्शन है विच इज़ 20 न्यूटन और साथ आ जाएगा ये वाला 4 न्यूटन. अब इन दोनों को ऐड अप करें, वी विल गेट आवर आंसर विच इज़ 24 न्यूटन and it is equal to F and it is our answer. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया. आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.